माननीय दयाराम जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय प्रोफेसर के.एस. चलम साहब को, साथ साथ हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर माननीय ए.के. अकोदिया साहब को लेकर के सम्मान के साथ आप सादर मंच पर आएं। All of you, Jai Bhim, Jai Mulnivasi. Today, we are going to inaugurate our BAMSF 31st National Convention in this historical place, Jaipur. It is most privileged to me here to address you all. As all of you know, that in this convention, many topics will be deliberated and discussed during these 4 days, starting today, that is 20th December to 23rd December. Today, for inaugurating this 31st National Convention of the BAMSF organization, we cordially invited Professor K.S. Chalam as the chief guest. He is the former Vice Chancellor of Dravidian University, Kuppam, Andhra Pradesh, which is the Assembly constituency of AP Chief Minister Nara Chandrababu Naidu. And also, he was the former member of Union Public Service Commission, New Delhi. Another special guest we are invited for this convention is Professor Sushma Yadav, Pro Vice Chancellor, IGNOU, New Delhi. Our beloved BAMSF National President, M.N. Dayaram, will preside over this inaugural session, and our National General Secretary of the BAMSF, Mr. Amraj Singh Patel, will conduct the proceedings of this session. Now, I would like to call M.N. Ashok Parmar Sahab. He has successfully completed 6 years tenure on 1st June 2011, and on the last day acted as an in-charge chair. As a senior member of UPSC, Cabinet Secretary rank, he led an official delegation to Australia to study the functioning of the Federal Service Commission and the recruitment policies at the Commonwealth and in the state of Australia. His book on governance in South Asia, State of the Civil Services, by SAGE, is a valuable contribution to promote excellence in the system. He is the founder editor of South India Journal of Social Science, now heads Panchashila Foundation Trust, Hyderabad, as a chairman. Professor K.S. Chalam is a versatile scholar with flair for social and human rights and secular activities. As an economist, he has published books on economic policy and participated in debates on Dalit poverty at international conferences. He was associated with the Right to Food conference organized by the National Human Rights Commission as a special
Rapporteur of South Zone 2. He was National Secretary, Amnesty International, Indian section during 1984-85. His weekly column in the Hans India, Delhi from Hyderabad, for 3 years earned him a niche among the intellectuals. He was member NCRI, MHRD, jury member, Dr. Ambedkar Award, Gold, etc. He served as Vice Chancellor of Dravidian University, Kuppam, Andhra Pradesh. He is known as the founder of Academic Staff College scheme in the country, as its first director, and worked as the first director of Swami Ramanand Tirth Rural Institute in Bhudan, Pochampalli, Andhra Pradesh. अकोदिया साहब का जन्म 5 जून 1940 में हुआ था। 75 साल में प्रवेश कर गए हैं। एमए एलएलबी की शिक्षा प्राप्त कर वकालत के व्यवसाय में सन 1972 से बतौर राजस्थान मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद से अपना कैरियर शुरू किया। आप जिला एवं सेशन न्यायाधीश 2000 तक रहे। वह उसके बाद सदस्य राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पद पर 2000 से 2005 तक रहे। कार्यक्रम आगे बढ़े इसके पहले डायस में बैठे हमारे सभी सम्माननीय साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा जो मूल निवासी दिनदर्शिका कैलेंडर कंप्लीट हो चुका है, तो उसका उद्घाटन माने विमोचन, क्योंकि अभी उधर स्टॉल में रहना है, इसलिए चाहेंगे कि यहीं विमोचित हो जाए। तो हमारे सभी डायस में बैठे हमारे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि इसका विमोचन करें। I'm extremely happy to be here at the 31st BAMSF National Conference. Though I had the opportunity to work and chair a session in 1989 when Kaparde visited Visakhapatnam, and also work with Kansi Ramji thereafter till his last breath in Delhi. I never had an occasion to attend the annual conferences here. My friend, colleague, Dr. Sachpal, has been briefing me for some time about the progress that we have achieved in the BAMSF. And he is instrumental in bringing me here along with all our friends on the dais. I regret that I will not be able to speak in the language that you can understand. But I am of the opinion that most of our languages, dialects that we used to speak in the past were destroyed, decimated, and were asked to speak in the language with which the aliens ruled this country. Friends, you may be knowing about the Dinnaga, and the Dharmakirti, the greatest logicians of Buddhism. Sharad Patil used to write to me, and in fact he came to Visakhapatnam to tell me that both the logicians are from my place, that is Kalinga, central Kalinga, that's Andhra Pradesh and Kalinga Andhra. Why I am referring to the Dinnaga is that Dinnaga is the first greatest logician of Buddhism, and all his writings are available in Tibet now. Rahul Sankratiyan brought some of the writings kept in Patna Library. 22 donkeys loads of books and scriptures were brought by Rahul Sankratiyan. They are languishing near the museum in Patna. Nobody is interested in it. But Dinnaga has said that why Sanskrit and the language is used by the aliens to enslave Indians.
It is in the history of human society, the first grammar for a language was developed by Indian. Why? Dinaga said, language is the source through which you propagate your culture, your ideas. And therefore, in his theory of Apoha, he has said that language is a tool in the hands of the ruling masters, and be careful about the language. But anyway, I am sorry that I am not able to speak in the Hindi language or Rajasthani or Marathi and even other languages. I used to joke with my friend Professor Mungekar, and I also said with Professor Mr. Borkar. Whenever we used to meet in Bombay or Nagpur, they used to speak only in Hindi, but not in Marathi. Only in the private life we speak in Marathi, but not in Hindi. But anyway, this is in a lighter vein that I am saying this. That's why language is very, very, in other words, you remember that 2,500 years ago, they have realized how to direct the nation, direct India, under their control, under their ideas, under their own dictations. But before doing it, I wanted to pay my homage and respects to my ancestors. Particularly, I start from Rajasthan. Friends, you may not be remembering that several people in Rajasthan were persecuted in this country. And we know that Rajasthan is a land of valor, but Rajasthan is a land of persecution. And you remember that in the 11th century AD, some of the untouchables of Rajasthan disagreed with the social order in this country, left this country through Egypt and Rome, and now they are living in Europe, Eastern Europe, as gypsies. The gypsies and Ravas are the people, untouchables of Rajasthan. And they are the people who are without any country, without any nation. In the world at large, we keep on talking about Palestine, but no one is there to talk about the Ramas and the gypsies of Rajasthan. They are our people. And we know that Sambara, the great hero, maybe in the idea of Jatipita, Mahatma Phule, maybe Sambara was the great leader of this country, who Sambara fought 30 years war against Divodas, the alien, the Aryan ruler. When he entered this country, Sambara fought for 30 years. And you know, the Sambara is Kangada port near Jalandhar that was completely destroyed. Friends, our people on the eastern coast, the fishermen, some of the fishermen are scheduled castes in East India, Bihar, Bengal, Odisha, and some of them are backward classes in South India. They are the people, they are the rulers, they are the protectors of the national border. The national border is there on the Pakistan, the national border is also there on the East India, on the 20 kilometers continental shelf there. They are the people who civilized East India, Eastern Asia. They civilized Indonesia. They started a country called Sri Lanka till the death and assassination of Prabhakar, a fisherman community who hails from this part of the country. He is also a Moolavasi or Moolavasi, native Indian. And friends, all the East Asian countries were civilized by the fishermen. In fact, Singapore itself is a small fisherman village populated by the fishermen of East India. They are all our people. In other words, what I am trying to say, what I am trying to put before you is that we had a glory past that is completely destroyed, devastated, and we have to build our own history hereafter. And our generation, Borkar generation, Ramdas generation is second generation. Baba Saheb belonged to the first generation. They gave us some ideas. We have taken the task, the caravan up to this level. I am sure that the younger generation, I am very happy to see younger people like Paul and others who are taking the caravan forward. We have great hopes that we will definitely regain our history, regain our
last glory in the years to come. हम शासक थे, गुलाम रहे, आजादी के बाद भी गुलामी का जीवन जी रहे हैं। हर संसाधनों पर हमारा से नहीं है, नीति निर्धारण पर हमारा से नहीं है। अब इस पे मनन और चिंतन करने का आ गया है। साथियों, यदि विचारधारा क्रिया में नहीं बदलती है तो उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती है, और प्रतिक्रिया नहीं होती है तो समाधान भी नहीं होता है। मैं बामसेब के अधिवेशन को लगातार 2006 से राष्ट्रीय अधिवेशन अटेंड करता रहा हूं। प्रदेश स्तर के अधिवेशन भी अटेंड करता रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है, हम घर में बैठे हैं इसलिए बता रहा हूं, हम यहां चार्ज होने आते हैं, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, फिर 10-12 घंटे तक बात करते हैं, हम प्रतिक्रिया नहीं करते। हमारे सामने ढेर सारे प्रश्न हैं। इस देश में 6 करोड़ लोग स्लम्स में रहते हैं। जो सर्वे आया है, सबसे अधिक गुलाम इस देश में है, सबसे अधिक अशिक्षित इस देश में है, सबसे अधिक बेरोजगार इस देश में है। ऐसा क्यों है? हम मनन और चिंतन तो करते हैं, लेकिन रिएक्शन नहीं करते, हम प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। हम श्रोता बन गए हैं। अभी स्लोगन दिया था, जो कौम नीची गर्दन करके चलती है उस पे ताज नहीं बन सकता। हम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? साथियों, किसी भी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए 3 तत्व होते हैं। विचार होते हैं, उसका प्रचार होता है, और फिर फॉलोअर अनुयायी बनते हैं। हम अच्छे प्रचारक नहीं पैदा कर पाए। ऐसा नहीं है ब्राह्मणवाद को चैलेंज नहीं किया गया हो। ब्राह्मणवाद को हर युग में चैलेंज किया गया है। आप संत कबीर का साहित्य पढ़ लीजिए। मध्ययुगीन में बुद्ध का साहित्य तो नष्ट कर दिया गया और उसमें ब्राह्मण घुस गया, बुद्ध को भगवान बना दिया, उसको दूषित कर दिया। लेकिन संत कबीर, संत तुकाराम, पेरियार रामास्वामी, ज्योतिबा फूले, घासीराम जी, नमो शूद्र मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट हमारे क्यों खत्म हो गए, क्यों नहीं चल पाए? बाबा साहब का परिनिर्वाण 1956 में हुआ था। 1956 से 1978 का पीरियड में कोई घटना ऐसी नहीं घटी जिसको हम स्वाभिमान से कह सकें कि हमने कोई लड़ाई लड़ी है। 1978 में बामसेब की स्थापना हुई और बामसेब लगातार विचार परिवर्तन के लिए प्रयासरत है, लेकिन हम अधिक लोगों को नहीं जोड़ पाए। जो अधिवेशन में आते हैं वो यदि यहां से ये संकल्प लेके जाएं कि अगली बार हम 10 आदमी को और साथ लाएंगे, तब तो हम मानेंगे कि हमारा मूवमेंट, हमारी विचारधारा आगे बढ़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैंने बामसेब का 2006 से लेकर 2012 तक के अधिवेशन अटेंड करे। उन अधिवेशनों में वही लोग आते थे। 2006 में जो लोग आए, यदि वो उनकी अकाल मृत्यु नहीं हुई है तो 2012 में वो दिखाई दिए। हम क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? क्या कभी इस पे मनन और चिंतन किया? हमको इस पे मनन और चिंतन करना चाहिए। ब्राह्मण अच्छा प्रचारक है, ये चलम साहब ने कहा। ब्राह्मण अपनी विचारधारा पर अटल है। मैं बताऊं आपको,
कितना बड़ा षड्यंत्र है। ब्राह्मण इस देश में आए, उसने हमको नाम दिए। सतयुग में हमें असुर कहा, राक्षस कहा, दैत्य कहा। त्रेता युग आते आते फिर हमारा नाम बदला, हमको शूद्र कहा। बामसेफ संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो निर्णय लेती है, उस निर्णय को बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑफिस बियरर्स सभी को मानना बाध्य है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी सुनिश्चित उद्देश्य के तहत ही किसी प्रांत में अधिवेशन लगाने का निर्णय लेती है। आज हमारे डेलीगेट साथी राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत कर रहे हैं। साथियों, हम ये बताना चाहते हैं कि हमने राजस्थान क्यों चुना इसलिए इस साल। राजस्थान एक अद्भुत स्टेट है। ये भारत का एक अद्भुत स्टेट है। राजस्थान अद्भुत स्टेट इसलिए है कि भारत के किसी प्रांत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो पितामह है, जिसे मनु के नाम से आप लोग जानते हैं, भारत के किसी प्रांत में उसकी स्टैच्यू नहीं है, लेकिन इस राजस्थान के हाई कोर्ट परिसर में उसकी स्टैच्यू है। इसलिए यह हमने निर्णय लिया कि हमें राष्ट्रीय अधिवेशन उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पितामह की जहां पर खड़ा है, वहीं पर हम लगाएंगे। यह भी हमारा एक मकसद है। दूसरा यह भी हमारा मकसद है कि इसी माह के 25 दिसंबर 1927 को भारतीय संविधान के पितामह डॉक्टर अंबेडकर ने इसी 25 दिसंबर को मनुस्मृति का दहन किया था। इसलिए हमने इस अधिवेशन को दिसंबर माह में लगाते हैं। आप समझ गए होंगे कि हमने जयपुर में क्यों चुना इस वर्ष, और हम दिसंबर क्यों हर साल चुनते हैं। यह हमारा फिक्स एजेंडा है कि हम दिसंबर में ही चुनते हैं, इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसी महीने में मनुस्मृति जलाई थी। साथियों, यह अद्भुत स्टेट इसलिए भी है जिसको मैं बड़े ही पैनी दृष्टि से इसको अध्ययन किया हूं, इसलिए कि राजस्थान की ज्यादा से ज्यादा बसें उत्तराखंड के हरिद्वार, वो जो देवभूमि है, उसमें हमें दिखाई देती है। सबसे ज्यादा बसें वहां दिखाई देती है। जाति व्यवस्था के खिलाफ इस देश का मूल निवासी समाज अपना बलिदान करने के लिए तैयार है। अपना त्याग और समर्पण इस देश से हम जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए उनके समस्या सामने खड़ी है कि हम क्या करें। इसलिए कृष्ण को आगे लाते हैं। दूसरा क्या उपदेश देते हैं? कृष्ण जो लिखा है, कवियों ने जी लिखा, अधिकार पाकर बैठ रहना
यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये कौन कहता है? कृष्ण कभी अपनी भाषा में लिखता है, जयशंकर प्रसाद, कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। दंड देना धर्म है, इसका मतलब मारना धर्म है। साथियों, अगर मारना धर्म है तो क्या बचाना अधर्म होगा? मारना अगर धर्म है तो क्या बचाना अधर्म है? अर्जुन से कहता है मोह मत करो, रहन्य देहन्य माने शरीरे, शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं होता है। आत्मा अजर और अमर है। नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, ये न जलाए से जल सकती है, न काटने से कट सकती है। आत्मा अजर और अमर है। अय अर्जुन, उठा गांडीव, धनुष उठा, मार, कोई अपना नहीं है। बांधु बांधवों का जो है वो न करो, मोह माया न करो, मार। युद्ध होता है और 18 अक्षौणी सेना, इनका धर्मशास्त्र का ताइत्र, लोग मारे गए, खून खराबा हो गया। ये सारी बदमाशी हुई तो क्या इस देश में मारकाट से इस देश का शासन चलेगा? क्योंकि इतिहास साक्षी है, जब आर्य ही देश में आए तो उन्होंने खून खराबा किया, हमें हमारी अपनी व्यवस्था खून खराबा करके हमारे ऊपर लादा। जब हमारा शासन था तो पुष्यपुत्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने खून खराबे से बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया और सत्ता हासिल किया। इसके बाद ये सारे धर्म ग्रंथ लिखे गए। कैसे? खून खराबे से। आज वर्तमान में साथियों, जो हमारे सामने चैलेंज है कि आज इस लोकतांत्रिक भारत में ये शासक जातियां खून खराबे से सत्ता हासिल करने के लिए सांप्रदायिक दंगे कराती हैं, जातिवाद की भावना से जो है लड़ाई कराती हैं। पूरे देश में सांप्रदायिक का जहर फैलाया जा रहा है, जिससे कि लोग संप्रदाय में बढ़ करके, कोई हिंदू संप्रदाय, कोई मुस्लिम संप्रदाय, इस तरह से सारे इकट्ठा होकर के इनको राजा बनाते रहे। इस बदमाशी को आपको समझना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी अभी स्टेटमेंट दिया था, मुझे भारत के संविधान पर, अपने संविधान पर गर्व है कि मेरे जैसा एक साधारण सा व्यक्ति, चाय बेचने वाला, एक साधारण सा व्यक्ति संविधान की वजह से इस देश का प्रधानमंत्री हो गया। ये मुझे संविधान पर गर्व है। माननीय साथियों, वो कहते हैं हमें संविधान पर गर्व है। उनको एहसास करना होगा। अगर इतिहास पढ़ेंगे, 1918 में जो सोलापुर के अथरी नामक जगह पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, जब पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा कि माननीय तिलक जी, हम लोगों को संसद और विधानसभाओं में जाने के लिए प्रतिनिधित्व चाहिए, हम चाहते हैं कि स्वराज्य जब आएगा हमारी क्या स्थिति होगी, ये क्लियर करिए। उन्होंने कहा था ये तेली, तमोली और कुनभटे संसद में क्यों जाना चाहते हैं? क्या संसद में तेली जाकर के तेल बेचेगा? क्या संसद में जाकर के तमोली कपड़ा सिलेगा? और कुर्मी क्या संसद में जाकर हल चलाएगा? लेकिन साथियों, मोदी जी का स्टेट निशाना कहीं है और निगाहें कहीं हैं। आप लोग इंटरनेट पर जाकर के देख लो कि भारत के संविधान का दूसरा प्रारूप विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भारत का दूसरा संविधान, उसका प्रारूप तैयार करके नेट पर डाल दिया है। हमारे दिमाग को देखने के लिए इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। इंदिरा जी ने इस भारत का संविधान के खिलाफ जब मंडल की चिंगारी उठ रही थी तो उन्होंने हमारे नेताओं को जेलों में बंद किया और इमरजेंसी लगा दी थी। देश के नागरिकों के मूल अधिकार समाप्त कर दिए मंडल की चिंगारी की वजह से। अटल जी ने संविधान समीक्षा के नाम पर इस देश का संविधान बदलने का प्रयास किया। और मोदी जी के शासन में क्या इनको मालूम नहीं होगा कि विश्व विद्यार्थी परिषद जो ये संविधान लिख रही है, ये जो प्रारूप दिया है, ये कोई मकसद से नहीं है, सब जानकारी में है। ये कहते हैं गर्व से कि हमें संविधान पर गर्व है। साथियों, हम कहते हैं संविधान पर गर्व करना चाहिए, इसलिए गर्व करना चाहिए जो शास्त्रों की बात करते हैं
रामचरितमानस के उत्तरकांड में साफ साफ लिखा हुआ है, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच की रात कोल, वर्णों में सबसे नीच तेली है, पहले नंबर पर तेली है। మనుస్మృతిని దునియాడిన వీరుడా రాజ్యాంగము రచించినది జై మౌల్యవాసి జై మౌల్యవాసి జై 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 మౌల్యవాసి జై 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 మౌల్యవాసి మనుస్మృతిని దునిమాడిన వీరుడా రాజ్యాంగము రచించిన ధీరుడా నువ్వు నాటిన విత్తనాలు నవ సమాజ భావాలు వృక్షాలై వనాలై పుష్పించిన నేడు నువ్వు నాటిన విత్తనాలు నవ సమాజ భావాలు వృక్షాలై వనాలై పుష్పించిన నేడు పుష్పించిన ప్రతి కొమ్మ ఫలించిన ప్రతి రమ్మ ఆ ఆ పుష్పించిన ప్రతి కొమ్మ ఫలించిన ప్రతి రమ్మ లక్షలాది విత్తనాలు వెదజల్లెను నేడు లక్షలాది విత్తనాలు వెదజల్లెను నేడు జై మౌల్యవాసి జై మౌల్యవాసి జై మౌల్యవాసి జై మౌల్యవాసి జై 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 మౌల్యవాసి జై 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 మౌల్యవాసి మనుస్మృతిని దునిమాడిన వీరుడా రాజ్యాంగము రచించిన ధీరుడా మనుస్మృతిని దునిమాడిన వీరుడా రాజ్యాంగము రచించిన ధీరుడా నువ్వు చేసిన త్యాగాలు మరువమని పోరాటాలు ప్రతి అడుగున నిన్ను తలచి నడిపిస్తాం నేడు నువ్వు చేసిన త్యాగాలు మరువమని పోరాటాలు ప్రతి అడుగున నిన్ను తలచి నడిపిస్తాం నేడు బాబా నీ కారువాను గమ్యము చేరెను చూడు ఆ బాబా నీ కారవాను గమ్యము చేరన చూడు మూల్యవాసి సమాజము విరబూయన నేడు మూల్యవాసి సమాజము విరబూయను నేడు జై మౌల్యవాసి జై మౌల్యవాసి జై మౌల్యవాసి జై మౌల్యవాసి జై 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 మౌల్యవాసి జై 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 మౌల్యవాసి మనుస్మృతిని దునుమాడిన వీరుడా రాజ్యాంగము రచించిన ధీరుడా మనుస్మృతిని దునిమాడిన వీరుడా రాజ్యాంగము రచించిన ధీరుడా అందుకో భీమయ్య అందుకో మా బ్లూ సలాం అందుకో భీమయ్య అందుకో మా బ్లూ సలాం జై మౌల్యవాసి జై మౌల్యవాసి జై మౌల్యవాసి జై మౌల్యవాసి జై 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 మౌల్యవాసి జై 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 మౌల్యవాసి మనుస్మృతిని దునిమాడిన వీరుడా రాజ్యాంగము రచించిన ధీరుడా మనుస్మృతిని దునిమాడిన వీరుడా రాజ్యాంగము రచించిన ధీరుడా జై మౌల్యవాసి। विषय बड़ा गंभीर है क्योंकि बाबा साहब के अथक प्रयासों से हमारे समाज के लोगों को शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, राजनीति में जाने का अधिकार और मंत्री एमपी बनने का अधिकार बाबा साहब के द्वारा ही हम लोगों को मिला। लेकिन वो राजनीति में जाकर के केवल राजनीति तक ही सीमित है, फूले व अम्बेडकरी विचारधारा तक वो सीमित नहीं है। तो बामसेब ने जो विषय रखा एक बहुत गहन चिंतन विषय है। हमारे विशेष वक्ता मान्यवर डॉक्टर प्रोफेसर विवेक कुमार जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं
कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, बामसेब के 31वें राष्ट्रीय अधिवेशन में आज का ये पहला प्रबोधन सत्र होने जा रहा है। इस पहले प्रबोधन सत्र का विषय है फुले अंबेडकरी विचारधारा पर आधारित राजनीति के बगैर राष्ट्र की समस्याएं हल नहीं हो सकती। साथियों, इस विषय में इसलिए बामसेब पिन पॉइंटली समाज में इस विषय पर चर्चा करना चाहती है। इस ब्रीफ में बामसेब ने कहा है, बामसेब का अपना ये मत है कि इस वर्ष संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम से सबक लेके बिहार प्रदेश में दोस्त से दुश्मन बने दो मूल निवासी नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार राजनीति में अपना अस्तित्व बचाने के लिए पुनः एक साथ आ गए और आंशिक रूप से सफल भी हो गए। महाराष्ट्र में इसका रिएक्शन एक ओबीसी नेता ने दिया, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। ओबीसी के नेता सुधर गए, दलित नेताओं का क्या। तो वो बामसेब में भी आ चुके हैं। तो वो एक डिमार्केशन लाइन बना देते हैं समाज में कि अगर ओबीसी के नेता सफल हो रहे हैं तो दलितों के नेता क्यों नहीं सफल हो रहे। और बामसेब ये डिमार्केशन लाइन को तोड़ देना चाहती है। इस देश के जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के जो नेता है, उन्होंने इकट्ठा आके राजनीति करनी चाहिए, ना कि सिर्फ ओबीसी बनकर। साथियों, इसीलिए दो नेता आंशिक रूप से सफल हो गए, इसलिए कुछ लोग खुश हैं। इससे उत्साहित होकर भी लालू प्रसाद के संदर्भ से हमारा मानना है कि मूल निवासी नेता राजनीति में अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक साथ तो आ रहे हैं, लेकिन अपने आप में ये पर्याप्त नहीं है। जब तक वे व्यवस्था परिवर्तन एवं जाति विहीन समाज की स्थापना के एक समान उद्देश्य एवं विचारधारा के आधार पर संगठित नहीं होते, तब तक कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं आ सकता। राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं। बामसेब का अपना मानना है कि भारत की मुख्य समस्या ब्राह्मणवाद है और इसका समाधान ना तो लोहिया, ना मार्क्स, ना गांधी के पास है। इसका समाधान केवल फुले अंबेडकरवादी विचारधारा के पास है। लोहिया पूरे जीवन भर गांधी एवं नेहरू को अपना आदर्श मानते रहे और रामायण मेला का आयोजन एवं द्रौपदी सीता में आदर्श नारी का चरित्र ढूंढते रहे। विडंबना यह है कि हमारे कई मूल निवासी नेता लोहिया की विचारधारा के इर्द गिर्द राजनीति करते हैं। इसलिए ही वे कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा के साथ खड़े हो जाते हैं। फलतः मूल निवासी बहुजन समाज की समस्याएं जस की तस रह जाती है।
अब तक भारतीय मार्क्सवादी और गांधीवादी भी उन्हें हल नहीं कर सके, क्योंकि वह भी ब्राह्मणवाद के ही दूसरे रूप है। इसलिए साथियों, कार्यकर्ताओं को इस संदर्भ में जागरूक करने हेतु और समाज में फुले अंबेडकरवादी विचारधारा, राष्ट्र की समस्याएं और उसके तहत हम कैसी राजनीति कर सकते हैं, इस विषय में बामसेप ने ये प्रबोधन सत्र रखा है। मुझे ऐसा लगता है हमारे आदरणीय वक्ता इस विषय को विस्तार पूर्वक रखेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, दक्षिण में मूल निवासियों की आवाज श्री नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, आदिवासियों के महानायक बिरसा मुंडा और विश्व विभूति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मैं नमन करता हूं। और यह मेरा पहला मौका है, बहुत अच्छा लग रहा है 30 बच्चों की क्लास के अलावा 3000 बड़े लोगों के सामने बोलना। तो मेरे साइज पे मत जाइएगा, मेरी बातों में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विनम्र निवेदन है। मेरा जो टॉपिक या शीर्षक मैंने बोलने का रखा है वो है मानव अधिकार, राजनीतिक सरोकार एवं फूले अंबेडकरी विचारधारा। कैसे ये मूल निवासियों के लिए उपयोगी है, कैसे राजनीतिक खांचे में मानव अधिकारों को लाना है, उसकी लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा फुले ने लड़ी। मैं इसका खांचा खींचने की कोशिश करूंगा, थोड़ा आप लोग का ध्यान चाहूंगा। सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि मानव अधिकार हैं क्या, फिर हम आएंगे कैसे मूल निवासी लोगों को ये मानव अधिकार मिले या उससे हटाया गया। मेरे ख्याल से मेरे पास 10 मिनट है, ठीक है, शुक्रिया। और इसमें क्या योगदान रहा, तो मैं बहुत जल्दी से शुरू करता हूं। एक बड़े दार्शनिक हैं रेने डेकार्ट, जो कहते हैं कि मानव अधिकार जब आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे अपने आप को अलग पाते हैं। इसका मतलब है कि मानव ने बाकी चीजों से अपने आप को भिन्न किया। सबसे पहली भिन्नता उसने स्थापित की जानवरों के साथ कि हम इनसे अलग हैं। जानवर एक ही साइकिल में घूमता है, बार बार वही सीखता है और उसकी आने वाली पीढ़ियां वही करती हैं। इंसान इनसे बहुत फर्क है। मूल निवासियों ने कहां से शुरू किया था और उसी साइकिल में नहीं घूम रहे हैं, आज यहां तक बैठे हैं जिसकी जनसंख्या 3000 से ऊपर है, वो उसमें जोड़ता जाता है। और इस विचारधारा में हम बहुत कुछ जोड़ रहे हैं, ये गर्व की बात है। इसके बाद बात आती है कि भारत में मानव अधिकार किस प्रकार से बांटे गए या मूल निवासियों को वो अधिकार मिले कि नहीं मिले। बाबा साहब ने बहुत विस्तार से लिखा है कि कैसे कुछ लोगों को वर्ण के बाहर रखा गया, अवर्णा, दासा, नासा, बहुत सारे नाम उनके रखे गए, पाणी, तो कैसे अवर्णा रखा गया, लेकिन हिंदूवादी गहरी साजिश के तहत उन्हें फिर अंदर लिया गया और जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें वे अधिकार नहीं मिले, वो वंचित थे। उन्हें गांव से बाहर रखा गया, उन्हें बहिर्ग्रामात कहा गया, यानी गांव से बाहर रहने वाला। उन्हें व्यवसाय चुनने की आजादी नहीं थी, उन्हें शिक्षा के लेने के लिए आजादी नहीं थी। आपने सुना ही होगा, अगर वेद के मंत्र गलती से भी कान में पड़ जाए तो पिघला शीशा डाल दो। यानी ये सब रोक रहा है अधिकार लेने से, जो एक मानव के अधिकार हो सकते हैं, जो जानवर से अलग है। अगर दार्शनिक ना भी जाए तो कैसे वो अलग है, तो क्या हम बराबर नहीं हैं? किस हिसाब से कम है जो आपने आज तक रोका? अब इस बात की लड़ाई लड़ी किसने? अगर ऐतिहासिक रूप से देखें और मूल निवासियों के लिए देखें तो इस बात की लड़ाई लड़ी दो महत्वपूर्ण लोगों ने, जो इस सत्र में भी फिट बैठते हैं। मैं उसी के उसमें परिप्रेक्ष्य में बोलूंगा। तो पहले हैं बाबा साहब अंबेडकर और दूसरे हैं महात्मा फुले। बाबा साहब अंबेडकर के पूरे योगदान को हम मानव अधिकारों से जो ओतप्रोत हैं मूल निवासियों के लिए, उसको अगर हम बांटें तो ये जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार ने अपनी किताब दलित लीडरशिप इन इंडिया में भी बांटा है और मैं वहां से उधार ले रहा हूं, तो विद रेफरेंस बोल रहा हूं, अगर कोई एकेडमिशियन है वो भी दावा नहीं करे। तो पहला है व्यक्ति के स्तर पर उन्होंने कोशिश की कि लोग मांसाहार छोड़ें, शराब छोड़ें, यानी उन्हें मानव का अस्तित्व प्रदान करने की कोशिश बाबा साहब अंबेडकर ने व्यक्ति के स्तर से शुरू की। उसके बाद वे सामाजिक स्तर पे आए या सामुदायिक स्तर पे आए, जहां उन्होंने और आग्रह निवेदन किए या कोशिशें जारी रखी। उसमें बहुत सारे हमारे पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। तत्पश्चात उन्होंने
राजनीतिक रूप से सचेत होकर, जब इन सभी से वो अपना अनुभव लेते लेते आगे बढ़ रहे थे, तो राजनीतिक रूप से सचेत होकर राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की। इसके 2 चरण और हैं इसके बाद में, जिसमें उन्होंने अंततः जाकर संविधान बनाया और संविधान में इन मूल निवासियों के अधिकार संरक्षित किए, क्योंकि अभी तक इनको नहीं दिए गए थे। क्यों किए और वो कैसे फर्क थे बाकी जगह से, ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। और इसीलिए उसकी इस राजनीति में जो हम कर रहे हैं या आज के समाज में हो रही है, उपयोगिता है। और अंतिम स्तर उनका जो था वो था धार्मिक स्तर। जब उन्होंने सब कुछ देखते हुए, सारी कोशिशों के बावजूद देखा कि बदलाव नहीं हो रहा है, तो धार्मिक तरीके से बदलने की कोशिश की, ताकि ये मानव बराबर हो सके। महापुरुषों को नमन करते हुए मंचासीन पदाधिकारीगण, मुख्य वक्तागण एवं इस सभागार में उपस्थित मेरे प्यारे मूल निवासी छोटे भाई बहनों एवं बच्चों, साथियों, संगठन ने इस सत्र में जो विषय रखा है, फूले अम्बेडकरी विचारधारा पर आधारित राजनीति के बगैर राष्ट्र की समस्याएं हल नहीं हो सकती। बहुत ही तत्कालिक परिस्थितियों को देखकर मुझे लगता है कि इस विषय की निर्मित की गई है। साथियों, प्रस्तावना में साथी ने बताया कि 3 बातों पे हमें विशेष ध्यान देकर यहाँ पर अपना वक्तव्य रखना है। फूले अम्बेडकरी विचारधारा, राष्ट्र की समस्या और राजनीति, इसके तहत राजनीति। साथियों, हम सभी जानते हैं कि इस देश के अंदर फूले अम्बेडकरी विचारधारा जो है बहुत ही प्राचीन और बहुत ही मानवतावादी, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित विचारधारा है, जिसका निर्माण हमारे पुरखों द्वारा किया गया और जिसका अनुसरण और जिसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मूल निवासी समाज के कंधों पर है। साथियों, बाबा साहब एवं फुले साहब की जो विचारधारा है, उसी से ही हमारा मानवतावादी आंदोलन शुरू होता है, समतावादी आंदोलन शुरू होता है। इतिहास में पूर्व से लेकर के अब तक हम देखते चले आ रहे हैं, चाहे भारत के अंदर मुस्लिमों का आक्रमण रहा हो, आर्यों का आक्रमण रहा हो, तमाम जितने भी विषमतावादी विचारधारा के लोग इस देश में आए, उन्होंने मूल निवासियों के साथ जो व्यवहार किया, मूल निवासी विचारधारा को जो तहस नहस करने का कार्य किया, वह क्षणिक रहे। 8 साल 10 साल कम मात्रा में उनका अस्तित्व रहा और वो यहाँ से खत्म हो गए, वो यहाँ से चले गए। लेकिन साथियों, हमको इस बात पर गर्व है कि इस देश के अंदर एक विचारधारा ही ऐसी है, फूले अम्बेडकरी विचारधारा, जो सदियों से और आज तक 21वीं सदी तक सतत चलती आ रही है और जिसके द्योतक, जिसके साक्षी हम सभी लोग आज इस मंच पर हैं, इस सभागार में हैं। साथियों, सत्ता, इस देश के ऊपर जो सत्ता हासिल करने का जो तमाम नागरिकों में, तमाम संगठनों में, तमाम अलग अलग विचारधाराओं में जो होड़ लगी है, उस होड़ में हम यह देख रहे हैं कि जो विषमतावादी ताकत है, विषमतावादी ताकत निरंतर क्या कर रही है कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अपनी ओर तमाम हथकंडे अपनाकर आकर्षित कर रही है। और आज हम देखते हैं कि भारत में गैर बराबरी वाली विचारधारा पदासीन है। मूल निवासी बहुजन समाज के द्वारा ही उनको वोट दिया गया, उनको प्रतिनिधित्व मिला है और अंत में हम देख रहे हैं कि धर्मांतरण के नाम पर और तमाम हथकंडों के नाम पर मूल निवासी बहुजन को छला जा रहा है। साथियों, सत्ता पाने के लिए मूल निवासी समाज के हमारे जितने भी नेता इस समय भारत में राजनीति कर रहे हैं, वो निहित स्वार्थों के बल पर ही अपने आप को आगे किए हुए हैं। अगर मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो इस समय भारत की राजनीति में आगे हैं, वे अगर फूले अम्बेडकरी विचारधारा को अपनाकर राजनीति करें, SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज के जितने भी हमारे लोग हैं, उनके समस्याओं को लेकर, उनकी वेदना को लेकर, उनके हक अधिकारों को लेकर अगर वो राजनीति करते हैं, तभी हमारे देश में
हमारे पिछड़े वर्ग की राजनीति सफल हो पाएगी। पर हम देख रहे हैं साथियों, आज जितने भी राजनीति करने वाले मूल निवासी लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो निहित स्वार्थों में डूब करके ही राजनीति को कर रहे हैं। जैसा हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में मुलायम और मायावती का गठजोड़, मात्र निहित स्वार्थों के लिए ही उन्होंने गठजोड़ किया। अगर वे फूले अम्बेडकरी विचारधारा के तहत राजनीति करते, फूले अम्बेडकरी विचारधारा के तहत मूल निवासियों का भला चाहते, तो इस देश में निरंतर मूल निवासियों की सरकार चलती। लेकिन निहित स्वार्थ में पड़ करके वे हमेशा से और आज तक अपना ही भला देखते आ रहे हैं, और जो इस देश के बहुजन समाज के लोग हैं, उनके हक अधिकारों पर लगातार कुठाराघात होता चला आ रहा है। तो साथियों, अगर फूले अम्बेडकरी विचारधारा को एक लाइन में अगर समझा जाए, एक लाइन में अगर समझा जाए तो हम क्या समझ सकते हैं, यहां से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। मुझे लगता है कि जितना रिसर्च मैंने किया उस पे एक लाइन में अगर फूले अम्बेडकरी विचारधारा को बताना है तो वो है प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर किसी भी व्यवस्था की स्थापना। प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर किसी भी व्यवस्था की स्थापना फूले अम्बेडकरी विचारधारा की प्रस्तावना हो सकती है। कोई भी आप व्यवस्था हो, उस व्यवस्था को प्रजातांत्रिक मूल्य, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इसके आधार पर किसी भी व्यवस्था की अगर स्थापना करना चाहते हैं तो वो है फूले अम्बेडकरी विचारधारा की स्थापना। और उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं और उसके बाद फिर अपनी बात शुरू करूंगा कि ये जो प्रजातांत्रिक मूल्य की स्थापना क्या आपको कहीं दिखाई सृजित होती दिखाई पड़ रही है, कहीं बनती हुई दिखाई पड़ रही है? तो मुझे लगा कि बामसेफ की जो संरचना है, संगठनात्मक संरचना, अगर बामसेफ की संगठनात्मक संरचना को देखा जाए तो यह प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के आधार पर एक प्रजातांत्रिक संगठन को हम देख सकते हैं। आपने देखा कि उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल कि कितनी खूबी से बामसेफ ने अपने अध्यक्षों के समय अंतराल और समय सीमा को सीमित कर दिया और निर्धारित कर दिया। यानी कि पहले यह होता था अगर एक बार संगठन का अध्यक्ष बन गया तो आप समझते हैं उसको कोई हटा नहीं सकता। यानी कि आरएसएस का सरसंघ चालक और बामसेफ का अध्यक्ष एक तरह का, और हम कह रहे हैं कि मूल्यों की स्थापना हो तो कैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों और फूले अम्बेडकरी आंदोलन में फिर अंतर क्या बचेगा? तो कम से कम अब हम आज के दिन सीना ठोक करके और ताल बजा करके ये कह सकते हैं कि बामसेफ एक प्रजातांत्रिक संगठन है। हमारे अध्यक्ष की नियुक्ति केवल 2 वर्ष के लिए होती है और उसके बाद अध्यक्ष बदल जाता है। ये जीवन भर का मुचलका साइन नहीं किया है किसी ने। इस कसौटी पे साथियों, फूले अंबेडकर विचारधारा की इस कसौटी पर दूसरे संगठनों को कसना चाहिए। क्या दूसरे संगठनों में भी कोई ऐसी प्रणाली विकसित की गई है जिसके तहत उनके अध्यक्ष बदलते हैं? अगर नहीं बदलते हैं तो वो फूले अंबेडकरी विचारधारा पर काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इस बामसेफ को हमारी तरफ से साधुवाद। हम लोग सब एक बार ताली बजाएं, अपने लिए ताली बजाएं कि हम सब 31वें साल में जब बामसेफ का ये अधिवेशन बना रहे हैं
तो हम अपने आप को बधाई दें कि हम उस इतिहास के साक्षी हैं जिस इस इतिहास में बामसेम एक प्रजातांत्रिक संगठन बनकर के उभर रहा है। इसलिए एक एक कार्यकर्ता, बामसेम का एक एक कार्यकर्ता जो यहां पर है वो तो ज्यादा खुशहाल है क्योंकि वो इतिहास को देख रहा है। जो नहीं है उसको भी साधुवाद और जो बैठे हैं उनको तो धन्यवाद है। तो साथियों, यहां से मुझे लगता है फूले अंबेडकरी विचारधारा के तहत हमको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर संगठनात्मक ढांचा अगर हम तैयार करने की शुरुआत कर सकते हैं तो हम और भी बड़ी चीजें करने का मादा रखते हैं। ये हमारी एक शुरुआत है, बस इतनी सी। अब हम आते हैं टॉपिक पर। फूले अंबेडकरी विचारधारा के आधार पर राजनीति और राष्ट्र निर्माण को समझने के लिए साथियों, हमें लगता है उसके पूर्व हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या फूले अंबेडकरी विचारधारा के तहत या उसके समानांतर कुछ और भी विचारधाराएं चल रही थी। फूले अंबेडकरी, विशेषकर मैं महात्मा ज्योतिबा फूले के समय की बात करना चाहूंगा, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फूले के समय में एक ऐसा आंदोलन चल रहा था जो दिखा रहा था कि है तो वो राष्ट्र का आंदोलन, वो नेशनल मूवमेंट कहला रहा था, राष्ट्र का आंदोलन चला रहे थे लोग, लेकिन ज्योतिबा फूले उसको पहचानते हैं। ज्योतिबा फूले पहचान के कहते हैं यद्यपि ये राष्ट्र का नाम तो ले रहे हैं लेकिन ये चला कोई दूसरा आंदोलन रहे हैं। और वो 3 आंदोलनों की शिनाख्त करते हैं और 3 आंदोलनों की बाकायदा समीक्षा करते हैं और उसके बाद उस समीक्षा के तहत अपनी मंत्रणा देते हैं। साथियों, मैं थोड़ी सी बात अपने घर की बताना चाहूंगा। मेरे घर में एक बड़ा सा ताला है, में 3 चाबियां हैं, एक मास्टर चाबी है और 2 जनरल चाबियां। एक दिन क्या हुआ कि मैं एक चाबी लेके चला गया, मिसेज हमारी मास्टर चाबी से ताला बंद करके चली गई। शाम को मुझे 5 बजे लौट कर आया, ताला बंद था। बच्ची भी उनके साथ में थी, फोन किया तो बोली चाबी तो आपके पास है। हमने कहा ये मास्टर की नहीं है, तो उसने कहा भाई मास्टर की नहीं है, इसका क्या मतलब है। बच्ची हमारी एमए कर चुकी है, अभी इस समय कॉलेज में है, तो उसको अभी ये क्या समझ में आता कि मास्टर की क्या होता है। तो हमने कहा भाई ये मास्टर की नहीं है जिससे सभी ताले खोले जा सकते हों। तो हमारे बगल में हमारे मकान मालिक रहते हैं, तो वो हंसने लगे, बोले साहब आपके बीएसपी वाले तो यही कहते हैं कि मास्टर की ही सभी समस्याओं का ताला खोल सकती है। तो हमने कहा सर ये हमारे घर में जो ताला लगा है ये समस्याओं का ताला नहीं है, हैं? तो मैं ये बात क्यों आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारा आदमी हर ताले को उसी चाबी से खोलना चाहता है, जबकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे निकल गई कि बिना चाबी का भी ताला खोला जा सकता है। ऐसा लगता है आपको कि नहीं? ऐसा एज आ गई है, ऐसा समय आ गया है कि बिना चाबी का भी ताला खुल जाता है। टेक्निक अलग अलग लगानी पड़ती है। तो हमारे समाज ने जिस चेहरे को देख रखा है, साथियों मैं थोड़ा सा पीछे जाकर कि जब पहली बार सपा और बसपा का अलायंस हुआ यूपी में,
तो इस देश के उन समस्त शैतानों, मैं तो अब शैतान कहना शुरू कर दिया हूं, ब्राह्मण कहना छोड़ दिया हूं, समस्त शैतानों की दिमाग खराब हुई और उनको लगा कि हमारे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। और जब ये नारा निकला कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उनकी नींद हराम हो गई। तब उन्होंने मिस्टर हरकिशन सिंह सुरजीत को, जो कम्युनिस्ट थे, उनको लगाया और उस अलायंस को इतना खतरनाक तरीके से तोड़ा कि हम दुश्मन से तो हाथ मिला सकते हैं लेकिन अपने भाई से नहीं मिला सकते। मतलब दुश्मन शैतान अपनी शैतानी में सफल हो गया और हम शायद नहीं समझ पाए। साथियों, ये जो विषय वामसेफ केंद्रीय कार्यकारिणी ने इस बार के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो चर्चा के लिए रखा है, इसी तरीके के विषय न्यायपालिका से जुड़े हुए वामसेफ पहले भी लगातार अपने राष्ट्रीय अधिवेशनों के माध्यम से मूल निवासी बहुजन समाज में जो न्यायपालिका की गतिविधियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए लगातार रखता जा रहा है। और इसमें जो विषय है, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करने का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) और 124(2) में निहित है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन न्यायाधीशों जिससे कि राष्ट्रपति परामर्श लेना आवश्यक समझे से परामर्श के बाद नियुक्त किया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्णय लेते हैं। इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस के बाद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की प्रणाली के माध्यम से इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति पारदर्शी नहीं रही और भाई भतीजावाद का आरोप भी लगता रहा है। इसलिए इसके विरोध में आवाज उठी और परिणाम स्वरूप 2014 में संविधान के 121वें संशोधन विधेयक 2014 में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों को साझा करने के एक समझौता पारित हुआ, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से करने का फैसला इस तरह का प्रस्तावित किया गया। लेकिन सरकार ने जानबूझकर जो भारतीय संविधान के शुरू में ही 312(1) की जो व्यवस्था थी उसको नजरअंदाज किया, और वो व्यवस्था थी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का अपॉइंटमेंट करना, कि जितने भी जो जिला जज होंगे उससे ऊपर के जो न्यायाधीश हैं, चाहे वो केंद्र में हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, चाहे विभिन्न हाई कोर्ट्स में हो, उनकी जो नियुक्ति होगी वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के माध्यम से होगी। जिस तरीके से हमारे आईएएस का चुनाव या आईपीएस का जो चुनाव है वो यूपीएससी करती है, उसी तरीके से इस तरह की एक संस्था का चुनाव होना आवश्यक था। साथियों, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो भारतीय संविधान का कस्टोडियन होगा, और वो कस्टोडियन की जो भूमिका है
वो विभिन्न प्रांत के जो उच्च न्यायालय हैं उनके माध्यम से निर्वहन करेगा। लेकिन अभी तक जो न्यायपालिका का चरित्र रहा है, उस न्यायपालिका के चरित्र में केवल और केवल जो ब्राह्मणवादी चेहरे हैं वही दिखे हैं, क्योंकि उसकी जो चयन प्रणाली है, जो नियुक्ति का अधिकार है, वो पूरी तरीके से ब्राह्मणवादियों के हाथ में है और उसकी व्यवस्था भी एकदम अलग है, जिसमें किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है। और पिछले तकरीबन यदि हम 60-65 सालों में देखें तो चाहे विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय हों या भारत का सुप्रीम कोर्ट हो, वहां मूल निवासी समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या नगण्य रही है। और उसका असर जो पड़ता है वो पड़ता है जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मूल निवासी बहुजन समाज के जो निर्णय से संबंधित जब केस लड़े जाते हैं तो वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। संविधान में फंडामेंटल राइट्स और जो संविधान और लोकतांत्रिक प्रजासत्ताक जो व्यवस्था इस देश में तथाकथित आजादी के बाद में लाई गई, उसको संभालने वाले जो पिलर्स है, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री और जुडिशरी, और जुडिशरी में जो न्याय देने की प्रक्रिया की जाएगी वो क्यों की जाएगी कि बाकी के जो 2 पिलर्स है जिसके ऊपर लोकतांत्रिक व्यवस्था, प्रजासत्ताक व्यवस्था टिकी रहने वाली है, या आशा की गई थी कि ये टिकी रहेगी, टिकी रहनी चाहिए, उसमें से न्याय भंग अगर होता है, अगर एग्जीक्यूटिव अपनी पॉलिसीज लगाने में कोई अन्याय करते हैं, अगर पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस में अन्याय होता है, अगर मीडिया में कोई अन्याय होता है, या पर्सन टू पर्सन परिप्रेक्ष्य में फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो वहां पर स्टेट इंटरफियर करेगा। और जब लोग अपील करेंगे तो जुडिशरी न्याय देगी। ये मोटी मोटी संकल्पना और व्यवस्था है इस देश में। और इसीलिए जुडिशरी, अगर एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट्री और समाज में एक दूसरे के साथ अन्याय करने वाले लोग, उनके साथ और जुडिशरी के साथ में गठबंधन होता रहा या मिली भगत होती रही, तो क्या वो जुडिशरी सही न्याय देगी? और ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए संविधान में, संविधान निर्माता लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में और संविधान में लिखा गया कि जुडिशरी को लार्जली इंडिपेंडेंट रखना चाहिए। इसी वजह से, क्योंकि जहां से अन्याय होगा अगर वही उसमें इन्वॉल्व रहे तो फिर न्याय देने की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है, उसमें खिलवाड़ हो सकता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय नहीं मिलेगा। जब इंडिपेंडेंट जुडिशरी रखने की बात हुई, उसके साथ एग्जीक्यूटिव को या पार्लियामेंट्री को पूरी तरह से उसमें से रिहा नहीं किया गया। द प्रेसिडेंट, जो हमारे स्टेट के फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, he was there, he is there, और in consultation with the Chief Justice of India, वो सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस का चयन करेंगे। और वो इसीलिए मैं आपको बता रही हूं क्योंकि इसके आगे आपके सामने जानकारी आने वाली है। कैपिटलिज्म जो है उसका मेजर शेयर और एक्सप्लॉयटेशन अगर हो रहा है और इकोनॉमिक पावर लोगों के पास आ गया है, उसने बताया कि 90% इट हैज बीन थ्रू इनहेरिटेड वेल्थ। मतलब इनहेरिटेड मतलब पुश्तों से की गई हुई वेल्थ का जो ट्रांसफर हुआ और उसमें से होने वाला शोषण उसमें से हुआ है।
और वो चीज को अगर हम अपने देश में लगाते हैं तो ये जो तुम्हारा शोषण, हमारे लोगों का शोषण जो हुआ है, ये ब्राह्मणों की इनहेरिटेड वेल्थ और बनिया लोगों की इनहेरिटेड वेल्थ के जरिए से ही है। ये कितना खुला है। और ये जो इनहेरिटेड वेल्थ कि इसमें से जो कैपिटलिज्म पूरी तरह से ब्राह्मणिज्म के ऊपर आके बैठ गया हुआ है साथियों, तो ये क्या जजेस लोगों को या हमारे जुडिशरी को मालूम नहीं है? उसमें तो उन्होंने किस तरह से इन चीजों का, सामाजिक चीजों का ध्यान रखे हुए किस तरह से न्याय देने चाहिए थे। लेकिन ये हमारे समाज की, हमारे देश की त्रासदी है कि जो गवर्निंग क्लास है वही यहाँ का डोमिनेंट क्लास है, वही यहाँ का शोषणकर्ता समाज का क्लास है, और वही यहाँ का ब्राह्मण समाज है, और वही यहाँ का कर्ता धर्ता है, वही आज सत्तारूढ़ है। और साथियों, इनको इस तरह से सत्तारूढ़ सिचुएशन में से निकाल के सत्ता में आना अगर हमको है तो हमारे लोगों को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के माध्यम से जोड़ना होगा। आप लोग इसमें साथ देंगे, इस चीज को इस तरह से समझेंगे, इसको इस नॉन टेक्निकलिटी से समझेंगे, ये मैं आपसे आशा रखती हूँ। और आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। भारत संघीय लोकतंत्र है। हमने ब्रिटिश न्याय प्रणाली को अपनाया है क्योंकि इस देश में मनुस्मृति के अनुसार हिंदुओं पर और शरीयत के अनुसार मुसलमानों पर ट्रायल होती थी। वो और भी खराब थी, उसमें निष्पक्षता नहीं थी। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये उचित समझा कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली रीजनिंग पे आधारित है, निष्पक्षता है और इसमें स्वतंत्रता भी है। शासन के तीनों अंग, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, शक्ति के मुख्य केंद्र हैं। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका उन कानूनों की समीक्षा करती है और उल्लंघन करने वाले को दंडित करती है। एक सीधी सी व्यवस्था है। संघीय लोकतंत्र के आधार पर सेंटर में उच्चतम न्यायालय और राज्यों में हाई कोर्ट्स की व्यवस्था की गई है। इनकी चयन प्रक्रिया भी अलग अलग है। हाई कोर्ट जजेज और चीफ जस्टिस की नियुक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल 217 में होती है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेज की नियुक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल 124(1) में होती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को इन नियुक्तियों में डिस्क्रेशन था। राष्ट्रपति चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की नियुक्ति के लिए किसी भी न्यायाधीश से, किसी भी जूरिस्ट से सलाह ले सकते हैं और उस आधार पर वो नियुक्ति करेंगे। यही स्थिति राज्यों की है। एग्जीक्यूटिव का इसमें दखल था। सन 80 आते आते केंद्र में ब्राह्मणों का नेतृत्व कमजोर पड़ा। मुख्यमंत्री गैर ब्राह्मण बने क्योंकि जजेज की नियुक्ति में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की भूमिका रहती है। जजेज ने सोचा यदि भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 और 217 के अनुसार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेज की नियुक्ति की जाने लगी तो धीरे धीरे ब्राह्मणों का वर्चस्व जुडिशरी से समाप्त हो जाएगा। देश में भारतीय संविधान के अनुसार न्यायपालिका को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कानून बनाने का अधिकार संसद को है। कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधायिका को है। लेकिन जजेज ने इस संविधान को दरकिनार कर सन 82 में एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया और उसमें जजेज ने जो कंसेंट शब्द था
कि राज्य के न्यायाधीशों की और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वो चीफ जस्टिस की नियुक्ति गवर्नर और राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द सेंटर के जजेज की कंसल्टेशन से करेंगे। शब्द कंसल्टेशन है, आपने क्या सलाह दी उसका मानना आवश्यक नहीं था, लेकिन एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि कंसल्टेशन मीन्स इफेक्टिव कंसल्टेशन एंड इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसी जज की नियुक्ति के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट ने किसी जज की नियुक्ति के लिए कोई राय दी है, तो उस राय को राज्यपाल और राष्ट्रपति नहीं नकार सकते। फिर एक 1993 में जजमेंट आया, हाई कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 1993 में जजमेंट आया और उसको और इफेक्टिवली ये कर दिया कि जजेज की नियुक्ति में कॉलेजियम का की राय मानना राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए अनिवार्य हो गया। मान लो रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी होगी, तो जैसे मंडल कमीशन का जजमेंट आया और आकोदिया साहब ने बताया कि उसमें SC ST की रिजर्वेशन के बारे में कोई चैलेंज नहीं था। अगर SC ST की रिजर्वेशन के बारे में कोई चैलेंज नहीं था, ये एक फैक्ट है, मैं उनकी इंटरप्रिटेशन को आगे बढ़ाते हुए बताता हूं आपको कि लीगल सिस्टम में ये प्रिंसिपल है कि कोर्ट के सामने जब कोई इशू होता है तो उस इशू को डिसाइड किया जाता है। अगर कोर्ट के सामने कोई केस नहीं है जिसमें उस इशू को डिसाइड किया जा सके, जैसे SC ST की प्रमोशन की रिजर्वेशन के बारे में कोई पिटीशन पेंडिंग नहीं थी और जो 2 ऑफिस मेमोरेंडम VP सिंह गवर्नमेंट ने और बाद में चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने जो इशू किए, वो दोनों ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में इशू किए गए थे, उनमें प्रमोशन के बारे में कुछ नहीं था। तो जो इशू कोर्ट के सामने नहीं था, फिर उस इशू को उनको डिबेट नहीं करना चाहिए था और उसको फाइनली एडजुडिकेट नहीं करना चाहिए था। अब इसका दूसरा जो पहलू अगर आप लें, तो जैसे मंडल कमीशन का जजमेंट जो आया इंदिरा सानी, उसमें कह दिया रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होगा। अब इसको पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर में 77th अमेंडमेंट किया। ये 77th अमेंडमेंट होता है 17 जून 1995 को, और 10 अक्टूबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच कहती है अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन भी होगी तो आपको सीनियरिटी नहीं मिलेगी। मतलब ये तो मान लिया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का अमेंडमेंट हो गया, ये उस जजमेंट में कहीं रेफर नहीं है कि उसका अमेंडमेंट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसको डीमिंग बना के जैसे कि उनको पता नहीं है कि अमेंडमेंट हो गया है, और ये कह दिया अगर अमेंडमेंट भी हो जाए तब भी आप उसको नहीं दे सकते और उसको कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का इफेक्ट नहीं मिलेगा। अब उसके बाद 3 जजों का एक जजमेंट आया, वो 1996 में 1 मार्च 96 को आया। ये जो वीरपाल सिंह चौहान का जजमेंट था, इसमें इन्होंने सिंपल ये कहा कि रीगेन जो है हो सकता है, और एक कैचअप का प्रिंसिपल बना दिया कि एक पर्टिकुलर लेवल पे जब आप रीच कर जाएंगे और आपका जो सीनियर था, जैसे इनिशियल अपॉइंटमेंट में 2 क्लर्क लगे, एक क्लर्क यूडीसी होगा, तो वो जो यूडीसी जो क्लर्क हो गया अगर वो शेड्यूल कास्ट है और वो असिस्टेंट बन गया, उसके बाद अगर ये जनरल का जो क्लर्क है ये यूडीसी बनेगा तो ये रीगेन नहीं करेगा सीनियरिटी। लेकिन इस एक्सेप्शन के बावजूद इवन राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, सब जगह ये कैचअप का जो प्रिंसिपल था, वो कैचअप का प्रिंसिपल जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया उसके हिसाब से कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया, और उसके खिलाफ जब कोर्ट में जाते हैं तो उसमें इंटरवेंशन नहीं होती।
अब इसका दूसरा पहलू हम लेते हैं। इसके बाद जो है अमेंडमेंट हुआ, उन्होंने कहा 50% से ज्यादा आप अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, और 49.5% जो अपॉइंटमेंट है वो तो इनिशियल अपॉइंटमेंट SC ST OBC मिलके होगा। तो जो बैकलॉग की वैकेंसी तो कोई भर ही नहीं सकते। अगर बैकलॉग आपकी 100 वैकेंसी में से 49 या 50 भरनी रिजर्वेशन से, इन 49 की बजाय वो मान लो 20 भर लेते हैं और 30 वैकेंसी खाली छोड़ देते हैं, तो ये 30 वैकेंसी जो रहेगी इनको आप भर ही नहीं सकते, क्योंकि मंडल में कह दिया कि आप जो है 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं कर सकते। तो उसके लिए पहला अमेंडमेंट जो उस टाइम में NDA की सरकार थी उसने किया, कॉन्स्टिट्यूशन 81st अमेंडमेंट एक्ट, और इसके तहत बैकलॉग वैकेंसीज को सेपरेट ट्रीट करने का एक सिस्टम डेवलप किया गया, जिसके तहत जो बैकलॉग वैकेंसी है उसको 50% में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है इससे एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई, क्योंकि इस अमेंडमेंट से पहले संविधान में कहीं ये नहीं लिखा था कि 50% की सीलिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड सीलिंग है, वो जुडिशरी ने क्रिएट की थी। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद जो है उसको लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी मिल गई। अब उस अमेंडमेंट के बावजूद भी उसका बेनिफिट कहीं पे भी नहीं मिला। 2000 में अमेंडमेंट हुआ, आज हम 2014 को खत्म कर रहे हैं, कहीं पे भी बैकलॉग की वैकेंसीज नहीं भरी गई। तो वो अमेंडमेंट करने का कोई पर्पज नहीं है, केवल ये 50% की सीलिंग लिखने के लिए वो अमेंडमेंट किया। अब उसके बाद दूसरी चीज पे आ जाए, रिलैक्स स्टैंडर्ड अगर नहीं है, जैसे प्रमोशन करना आपने, प्रमोशन में एक शेड्यूल कास्ट है, एक जनरल कैंडिडेट है, दोनों की मान लो 44 मार्क्स है, और आप अगर उस पे ले रहे हैं तो फिर वो तो जनरल स्टैंडर्ड हो गया, तो उसमें रिजर्वेशन का कोई कंसेप्ट लागू नहीं हुआ। तो ऐसा बहुत कम होता है कि शेड्यूल कास्ट जो होते हैं उनकी बराबर की परसेंटेज हो, इक्वल परसेंटेज हो, और इस वजह से उन्होंने रिलैक्सेशन के लिए प्रोविजन रखा गया। और रिलैक्सेशन जो प्रोविजन रखा, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन 82nd अमेंडमेंट पास किया गया 2000 में। और इस अमेंडमेंट के बावजूद अभी हम हाल में 2014 में एक केस जीते 15 जुलाई 2014 को, जिसमें ये अमेंडमेंट हो गया, उसके बावजूद भी उनको वो बेनिफिट नहीं मिला रिलैक्सेशन का। इसलिए एक भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का कैंडिडेट सेक्शन ऑफिसर्स की जो एग्जाम थी उसमें पास नहीं हुआ, और 98 से और अब 2014 तक केस लड़ते रहे। अभी भी इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ है, पर उम्मीद है वो 10-15 दिन में शायद जजमेंट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसके बाद जो ये कैचअप और रीगेन ऑफ सीनियरिटी का इशू था, इसके लिए 85th अमेंडमेंट हुआ, 85वां संशोधन। अब ये 85th अमेंडमेंट जो हुआ, 85th अमेंडमेंट होने के बावजूद उसका कहीं बेनिफिट नहीं मिला। जब उसका इंटरप्रिटेशन नागराज में हुआ तो उन्होंने कह दिया प्रमोशन में रिजर्वेशन देनी जरूरी नहीं है। उसमें 122 पैरा में ये कह दिया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देनी जरूरी नहीं है, इसलिए किसी भी स्टेट में प्रमोशन में रिजर्वेशन एक्चुअली नहीं मिल रही है। तो अगर आपको संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स को नहीं मानना तो अमेंडमेंट करना कोई जरूरी नहीं है। आप ये अमेंडमेंट क्यों किए जब हमें बेनिफिट ही नहीं देना? एक तरफ तो कहते हैं हम आपको रिलैक्स स्टैंडर्ड पे रिजर्वेशन दे रहे हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हैं, सीनियरिटी में कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में आप कोई बेनिफिट नहीं दे रहे। तो ऐसे अमेंडमेंट का क्या फायदा? अगर ये रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी होगी तो मैं समझता हूं कि जुडिशरी में भी जैसे हम चर्चा कर रहे हैं वहां अंदर भी चर्चा होगी और हमें जो हमारे राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। अब जो जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है, जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के सिस्टम में अगर आप देखेंगे ज्यादातर जजेज के बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनका दामाद, कोई मतलब वो फैमिली वाले लोग ही जज बन जाते हैं। इसके बारे में काफी चिंता भी होती है, लेकिन वो चिंता कोई खास
इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। व्हाट इज द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर साहब उधर भी बैठे हैं, डॉक्टर इधर भी बैठी है। हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन फेल कब होगा? जैसे हार्ट फेल होने से आदमी मरता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन फेल कब होगा? तो मेरी अंडरस्टैंडिंग से पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स एंड टू सम एक्सटेंट इवन पार्ट 4 ऑल्सो डायरेक्ट, जबकि मैं तो पार्ट 4 को ज्यादा महत्व देता हूं, वो एक बड़ा अलग डिबेट का विषय हो सकता है। पार्ट 3 and part 4 of the constitution, they are the heart of the constitution, and all other chapters and parts, they are all mechanism to ensure the fundamental rights of the citizen. Baki sab, even the appointment of judges, why the judges are appointed? Can we not do without the judges? No, we cannot do without the judges. Why? Because the constitution wanted the fundamental rights of the citizens must be protected, and to protect the fundamental rights of the citizens, the judiciary is created. So it is a mechanism to see and to ensure that the fundamental rights are प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड, इसलिए वो मैकेनिज्म है जजेस। फिर अगर ये है तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217 इज इंडिपेंडेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? फिर ये सवाल आता है हमारे सामने, क्या आर्टिकल 217 और 124 ये संविधान में इंडिपेंडेंट है और इट विल आल्सो बी गवर्न बाय द फंडामेंटल राइट्स? उसको अलग से लिखा गया, उसका कुछ लेन देन नहीं है फंडामेंटल राइट से। अगर उसका लेन देन फंडामेंटल राइट से है तो फिर आर्टिकल 16 जो है उसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये है आर्टिकल 16(1). सवाल ये उठता है कि क्या जजेस की अपॉइंटमेंट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आती है या नहीं? फिर ये मुद्दा आ जाता है, क्या वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है? मेरा यह मानना है कि दे आर ऑल पब्लिक सर्वेंट, एंड इफ दे आर पब्लिक सर्वेंट देन दे आर गवर्न्ड बाय आर्टिकल 16(4). दे आर नॉट इंडिपेंडेंट अंडर 124 and 217. And therefore, while appointing the judges under 124 and 217, it must be read with article 16(1) and article 16(4). और जैसे ही वो आर्टिकल 16(1) में और आर्टिकल 16(4) के दायरे में आते हैं तो इस देश के हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ये उसका मतलब है। अब वो जजेस की अपॉइंटमेंट, वेदर इट इज ए कॉलेजियम सिस्टम और वेदर इट इज ए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की जो सिस्टम वो बनाने जा रहे हैं, क्या वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? Are they not picking the person and choosing the person for even nominating them for the High Courts and the Supreme Court judges? एक व्यक्ति को पिकअप गया, चौहान यूजलेस, जोशी वेरी गुड, therefore his name is recommended. What is this going on in this country? इस देश में ब्राह्मणों ने एक तरीका ढूंढा है। तो मेरे इतने दिन के संगठन में काम करते करते चिंतन में आया है, वो ये है कि जो समस्या नहीं है, जैसे मैंने बताया समस्या नहीं है इधर,
आर्टिकल में कोई समस्या नहीं है। जो समस्या नहीं है उसको समस्या है बोलने का, पहले उसका प्रचार प्रसार करने का, क्योंकि प्रचार के सब माध्यम उनके पास है। जो समस्या नहीं है उसको समस्या है बोलने का, उसका प्रचार प्रसार करने का। फिर हमारे लोगों को फिर वही, क्योंकि हमारा ओपिनियन भी कैसे बनता है, हु मेक्स आवर ओपिनियन, डू वी रियली हैव इंडिपेंडेंट ओपिनियन। सुबह का पेपर पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर में उन्होंने उसको मार दिया, वही हमारे लिए इंफॉर्मेशन हो जाती है, वो मार दिया भाई, वो पाकिस्तान ने मार दिया, ये बन गया। हम उसके, एक बार मेरा लड़का बोल रहा था, ये जब मोदी ने गुजरात में अच्छा काम किया, मेरा लड़का मुझे बता रहा है, मैं बोला भाई तेरे को कैसे पता? मोदी ने गुजरात में अच्छा काम किया, ये तू मुझे बता रहा है, ठीक, तेरे को कैसे पता? तो बोले पेपर में आया, पेपर में आया इसलिए। मतलब पेपर ने वो ओपिनियन बनाया, और पेपर ने अगर ये लिख के आता कि गुजरात में मोदी ने अच्छा काम नहीं किया, तो मेरा लड़का क्या बोलता? मोदी फालतू है। तो ब्राह्मण ये कर रहा है इस देश में, जो समस्या नहीं है उसको समस्या है बोलने का पहले, फिर जो समस्या पहले ही नहीं थी फिर वो समस्या है, फिर जो नहीं है उसको ही सुलझाने का। वो पहले नहीं रही थी समस्या, पहले वो समस्या ही नहीं रही थी, फिर उसके ऊपर खर्चा करने का। ये हमारे देश में जो खर्चा होता है ना, ये फालतू का खर्चा है, इसी वजह से होता है। जो समस्या नहीं है वो समस्या है बोलने का, फिर समस्या है तो उसके ऊपर बजटरी प्रोविजन करने का, फिर बजटरी प्रोविजन करके उसको हल किया बोलने का। अरे वो पहले समस्या ही नहीं थी, और उसमें मतलब लाखों हजारों करोड़